ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں، آنسوؤں کی سیاہی سے لکھتا رہوں، خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بری کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، مہاراشٹر ویدھان سبھا چناؤ سے پہلے مہاویتی میں بغاوت، NCP ادھیکش سمیر بھجبل نے دیا پد سے استعفیٰ۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بات کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، کہ آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، اب تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں، کیا کہنا اب تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں، میں کہ شاعر بھی ہوں اور مورخ بھی ہوں، ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں، آنسوؤں کی سیاہی سے لکھتا رہوں، خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ اور آخری بند پڑھتا ہوں اور ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا کا ان باکس گالیوں سے بھرا رہتا ہے، صبح اٹھیے تو دھمکیاں گالیاں، کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد، کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد، دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا، ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد۔ ہر دن صبح شام، اور کبھی کبھی تو آتا ہے کہ اچھا تمہارا تو نام بھی عمران ہے تو تمہارا دل کہاں ہوگا ہم جانتے ہیں، تو پلٹ کے کبھی کبھی میرا من کرتا ہے کہ میں انہیں ایک تصویر بھیجوں کہ یہاں سے عمرہ کرنے یا حج کرنے گیا ہوا کوئی ایک ہندوستانی نوجوان ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں ترنگا لے رکھا ہے، میں پلٹ کے ایک تصویر بھیجتا ہوں اور نیچے لکھتا ہوں کہ میرے بھائی وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والے، ہم نے تو ایسی جگہوں پہ بھی ترنگا لے جا کے پھہرایا ہے جہاں پہنچنے کی تمہاری حیثیت بھی نہیں ہے، تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہو، ہم سے سوال کرتے ہو۔ تب میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب، کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، ادھر جو دوست کھڑے ہیں بائیں طرف، ادھر جو ڈائز پہ کھڑے ہیں سب تیار رہیں گے، میں آپ کے دھڑکنوں کا جو درد ہے، جو دھڑکنوں کی ڈور ہے نا، اس میں جو بات لکھی ہے اسے دنیا کے سامنے رکھتا ہوں ان مصروں میں، کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ تیار رہنا، اگلے جو دو مصرے آنے جا رہے ہیں، کہ ہم نے زمزم دیا آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔
کہ یہ तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और परभनी वालों, सिर्फ 3 मिनट आखिर। नाज़रीन, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बातें किताब से अकीका का बयान सुनते हैं। मसला, जिसके कोई लड़का या लड़की पैदा हो तो बेहतर है कि 7वें दिन उसका नाम रख दे और अकीका कर दे। अकीका कर देने से बच्चे की सब अला बला दूर हो जाती है और आफतों से हिफायत रहती है। मसला, अकीका का कायदा यह है कि अगर लड़का हो तो 2 बकरी या भेड़ और लड़की हो तो 1 बकरी या 1 भेड़ ज़बह करके या कुर्बानी की भैंस में लड़के के वास्ते 2 हिस्सा और लड़की के वास्ते 1 हिस्सा ले ले और सर के बाल मुड़वा दे और बालों के बराबर चांदी या सोना तौल कर खैरात कर दे और लड़के के सर में ज़ाफ़रान लगा दे। मसला, अगर 7वें दिन अकीका न करे तो जब करे 7वें दिन होने का ख्याल बेहतर है। और इसका तरीक़ा यह है कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ हो उसके एक दिन पहले अकीका कर दे। यानी अगर जुमा को पैदा हुआ हो तो जुमेरात को अकीका करे, चाहे जब करे वो हिसाब से 7वां दिन पड़ेगा। मसला, ये जो दस्तूर है जिस वक्त बच्चा के सर पर उस्तरा रखा जाए और नाई सर मुढ़ाना शुरू करे फ़ौरन इसी वक्त बकरी ज़बह हो, ये महज रस्म है, शरीयत से जायज़ है। चाहे सर मुंडने के बाद ज़बह करे या पहले ज़बह करे तब सर मुंडे। मसला, जिस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं उसका अकीका भी दुरुस्त नहीं और जिसकी कुर्बानी दुरुस्त है उसका अकीका भी दुरुस्त है। मसला, अकीका का गोश्त चाहे कच्चा तकसीम करे, चाहे पका कर बाँटे, चाहे दावत करके खिला दे, सब दुरुस्त है। मसला, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह सबको खिलाना दुरुस्त है। मसला, किसी को ज़्यादा तौफीक नहीं, इसलिए इसने लड़के की तरफ से 1 ही बकरी का अकीका किया तो इसका भी कुछ हर्ज नहीं, जायज़ है। और अगर बिल्कुल अकीका ना करे तो भी कुछ हर्ज नहीं। मसला, जब अकीका का जानवर ज़बह करना चाहे तो ये दुआ पढ़े। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं अपने इस बच्चे के सदक़ा में ये जानवर तेरे नाम पर ज़बह करता हूँ, जिसके खून के इवज़ खून, गोश्त के इवज़ गोश्त, हड्डी के एवज़ हड्डियाँ, खाल के एवज़ खाल, बाल के एवज़ बाल। मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को दोज़ख की आग से बचाने को ये जानवर का फ़िदिया कबूल फरमा। मैंने अपनी तवज्जो में हर तरफ से सिर्फ़ इसी तरफ लगा दी है जिसने ज़मीन व आसमान पैदा किए हैं और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत वो ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते हैं, इसका कोई शरीक नहीं है और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और हुक्म मानने वालों में मैं पहला आदमी हूँ। ऐ अल्लाह, यह सदक़ा फ़िदिया तेरी ही तरफ से तेरे ही लिए है। फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करने का बयान। ज़बह करने का तरीक़ा यह है कि जानवर का मुंह क़िबला की तरफ करके तेज़ छुरी हाथ में लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर और उसके गले को काटे यहाँ तक कि 4 रगें कट जाएं। एक नरखरा जिससे सांस लेता है, दूसरी वो रग जिससे दाना पानी चबाता है और 2 शाह रगें जो नरखरे के दाएं बाएं होती है। अगर इन 4 में से 3 ही रगें कटें तब भी दुरुस्त है, इसका खाना हलाल है। और अगर 2 ही रगें कटे तो जानवर मुर्दार है और इसका खाना दुरुस्त नहीं है। मसला, ज़बह के वक्त बिस्मिल्लाह क़स्दन उन्हें नहीं कहा तो वो मुर्दार है और इसका खाना हराम है और अगर भूल जाए तो खाना दुरुस्त है। मसला, कुंद छुरी से ज़बह करना मकरूह और मना है। इसी तरह ठंडा होने से पहले उसकी खाल खींचना, हाथ पाँव तोड़ना और काटना भी मकरूह है। मसला, ज़बह करने में मुर्गी का गला कट गया तो उसका खाना दुरुस्त है, मकरूह भी नहीं। अलबत्ता इतना ज़बह कर देना मकरूह है, मुर्गी मकरूह नहीं। मुसलमान का ज़बह करना बहरहाल दुरुस्त है, चाहे औरत ज़बह करे या मर्द, चाहे पाक हो या नापाक। और काफिर का ज़बह किया हुआ
जानवर हराम है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलाम वालेकुम।